for starting a chapter, there is no requirement about the discussion of the formula, because if I give all formulas discussion, you cannot remember that formula one by one. But if you go through the sums to learn the all formulas, then into your brain the formula must be retained very nicely. Okay, so for starting a chapter, I do not give the discussion of the formula. Into the sums you get all formulas, and after that through the sums, when you learn each and every formulas, then it will be retained in your brain very nicely, and then you can quote it on a paper. Okay, then you can quote all the formulas in a paper. Thank you. Now question number 1. If the two lines of regressions are this and this, we know that is the common point of two regression lines. This is the key. Now, x bar and y bar is the common point. What is x bar and y bar? The common point x bar y bar is the common point of the two regression lines. Here is the two regression lines, and 3x minus 2y plus 1 equal to 0. This. Now into the class 9 or 10 we did solve, and as per such type of solve, we have to solve this equation. Here is first coefficient of x is 3 and coefficient of x is 2, and 3 to the, what is the LCM of 3 to 6? So like you make 3x to 6, you make 2x to 6, and that's why this equation is multiplied by 2, 3 to the 6, and this equation is multiplied by 3, 3 into 2 6. That means 2 into 3 6x, 2 into 2 4y, 2 into 1 2, 2 into 0 0, 3 into 2 6x, 3 into y minus 3y, 3 into minus 2 minus 6. After देखो क्या किया ना, now doing 3 minus 4, ठीक है, 3 से 4 को माइनस करना है. तो माइनस करने से क्या मिलेगा? देखो ये माइनस प्लस 8, ये तो तुम लोग को मालूम ही है. चलो y इक्वल टू क्या होगा ना, सिर्फ 8. ठीक है. नाउ यूजिंग y इक्वल टू 8 इन एनी इक्वेशन, सपोज 1 इक्वेशन, नंबर 1 इक्वेशन में y का जगह में 8 पुट कर दो, इधर 0 8 पुट कर लो. करने के बाद देखो आंसर क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5. बस सॉल्विंग दिस two equations we get the common points. The coordinate of common points is x bar equal to 5 and y bar equal to 8. This is the answer. These are very simple sums. Okay. Now we have to subtract this 3 to minus. After that क्या है ना, माइनस 4y प्लस 3y, दैट मीन्स माइनस y, 6 प्लस x. देखो सब्ट्रैक्ट करने से नीचे का जो जितना फिगर है उसका ऑपोजिट हो जाएगा. ऑपोजिट होने के बाद देखो सब्ट्रैक्ट करने से माइनस y प्लस 8, y इक्वल टू 8, एंड आफ्टर पुटिंग दिस 8 इन एनी इक्वेशंस, दैट इक्वेशन नंबर 1 वी हैव टू क्या 3x x इक्वल टू 5, एंड दैट्स व्हाई सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस वी गेट द कॉमन पॉइंट्स. The coordinate of common points x bar equal to 5, x equal to 5 mila, and y equal to 8. That is the answer. Clear? Now, in the question number 1, here is fabricated the extra problem. Find coefficient of correlation between x and y, between the variables x and y, and also find concept of covariance between the two variables x and y, and find
delta y, that means standard deviation of y variates, when standard deviation of x variates equal to 3. Okay. Now we have to arrange the first equation, that is written as x, when x is subject, then x equal to 2/3 of y minus 1. From this equation we can write, and after that we get the regression coefficient of x on y. Okay, regression coefficient of x on y, that means 2/3, and from the second equation we get 2x minus y minus 2 equal to 0. That means when y is subject, y equal to 2x minus 2, and that's why regression coefficient of y on x, regression coefficient of y on x equal to 2. Clear? Now we know that byx equal to r into delta y by delta x. This is the question number 1. r क्या है? r is the coefficient of correlation, that means rho xy. ठीक है, तो सिमिलरली बी एक्स वाई क्या होगा ना, बी एक्स वाई इसका उल्टा ही होगा, r इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई. क्लियर? ये रोमन 2 है. नाउ 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है. नाउ वी आर डूइंग 1 इंटू 2, वी गेट दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, r इंटू आर, दैट मीन्स r स्क्वायर, dy कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर r स्क्वायर मिलेगा. तो r इक्वल टू क्या होगा ना, रूट ओवर बी आई एक्स इंटू बी एक्स वाई. r square equal to this is the second step, and bxy equal to 2/3, bx equal to 2/3, and byx equal to 2. That means calculation करके 4/3. So r equal to root over 4/3 minus 2/√3. 2 by 1.732, that means 1.154. ठीक है. And here is the key. Given that COB, xy means what? The concept of covariance between two variables into x and y. Rho xy means the coefficient of correlation r, coefficient of correlation between two variables x and y, and delta y equal to standard deviation of y variates. Standard deviation of y variates, ठीक है, delta y, and delta is the standard deviation of x variates. Clear? बस हो गया. चलो डेल्टा वाई, यहाँ पर डेल्टा वाई लिख लो, यहाँ पर इक्वल टू दे दो, इसको काट दो. ठीक है, रिचर्ज दे दिया. नाउ दिस द आंसर, आर इक्वल टू, आर मीन्स क्या है ना, रो एक्स वाई और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. दैट इज द आंसर, वेयर रो एक्स वाई, पर रो एक्स इक्वल टू दिस. आंसर हो गया. सेम से आर, इसका साइन प्लस होगा ना माइनस होगा, बी वाई इसका जहाँ साइन होगा याद रखना, रो जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, जब मिलेगा ना बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ऑलवेज बी वाई एक्स, बी एक्स वाई नहीं, बी एक्स वाई नॉट, बी वाई एक्स का जो साइन आएगा वही साइन आर का साइन होगा. तो अगर बी वाई एक्स का क्या साइन था, प्लस साइन था, इसलिए इसका आंसर भी प्लस आएगा. ठीक है, बी वाई एक्स माइनस होगा तो इसको माइनस हो जाएगा. बस क्लियर है. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरियंस, दैट मीन्स सी ओ बी एक्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या है ना, बी वाई एक्स इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स वेरिएट्स का स्क्वायर होगा. तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स वेरिएट्स का वैल्यू क्या बोला, 3 बोला. देखो 3 है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखना है, बी वाई एक्स का वैल्यू 2 है इंटू 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 18. बस आंसर हो गया. क्लियर? कहाँ से फॉर्मूला मिला ये, क्योंकि हम लोग को बी वाई एक्स मीन्स क्या है, कोफ एक्स वाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाई क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है. ठीक है, जब वाई एक्स होगा तो नीचे एक्स होगा, याद रखना. तो कैलकुलेट डेल्टा वाई इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वेरिएट, डेल्टा वाई निकालना होगा. डेल्टा वाई कैसे निकलेगा,
बोलो ना, बी वाई एक्स, इसका उल्टा पकड़ लो, बी वाई एक्स इक्वल टू क्या है, आर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, पहले तो यूज़ किया ना, देखो यहाँ पर यूज़ किया था, बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वही फॉर्मूला हुआ, एक नंबर यूज़ किया, वी आई एक्स का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू हमको मालूम है, पहले निकल गया था, और डेल एक्स का वैल्यू 3 बोल दिया, बस कैलकुलेशन करके डेल वाई निकल गया। ऐसे छोटा छोटा चीज़ निकलने के लिए बोलेगा, इसीलिए ये इसको एक्स्ट्रा सम कर लिया, इसीलिए तीनों चीज़ कैसे कैसे निकलेगा ये बोल दिया, ये एक्स्ट्रा सम्स जोड़ दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का साथ। अभी क्वेश्चन नंबर होगा 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इफ द टू कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस आर -0.6 and -1.4, find the coefficient of correlation, coefficient of correlation, तो कैसे होगा, here given the regression of x on y, that means bxy, क्वेश्चन नंबर 2 की बोलती है, इफ टू कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन सच -0.6 and -1.4, find the coefficient of correlation, that is, here is given that the regression of x on y, that is bxy, xy bxy equal to -0.6, and the regression of y on x, that is byx, yx, that means byx equal to -1.4, clear? Therefore the coefficient of correlation between x and y, coefficient of correlation between x and y equal to r, and that was root over क्या है, bxy dot byx, bxy का वैल्यू -0.6, byx का वैल्यू -1.4, माइनस माइनस में प्लस, अब तो आंसर होगा क्या 0.916, लेकिन माइनस क्यों लिखा, यहाँ पर तो प्लस हो गया था, माइनस किस लिए, now here is an rule of regression, that is byx and the r have the same sign, तो byx का साइन क्या था, -1.4, माइनस साइन था, byx का साइन थी तो माइनस है, therefore r का साइन भी माइनस होगा, इसीलिए -0.916 आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if the regression coefficient for the variables x and y are, that is byx equal to 1, bx equal to half, then find the angle between the regression lines, regression lines, the regression lines कैसे होगा बोलो, चलो, given regression coefficients are yx इक्वल टू क्या है ना 1 है, एंड वी एक्स वाई का वैल्यू क्या है, हाफ है, ठीक है, ये क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ वाई ऑन एक्स एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, दैट इज द हाफ, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन्स, यहाँ पर रिग्रेशन लाइन्स आर नॉट गिवन, रिग्रेशन लाइन्स आर नॉट गिवन, ठीक है, regression lines are not given, so therefore here is a formula, which formula, find the acute angle between the two regression lines, we have to find it, that means theta two regression lines, and regression lines का दो regression line का भीतर एंगल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, जो tan थीटा equals to modulus of 1 minus r square by bxy plus byx, tan theta equal to modulus of 1 minus r square by bxy plus byx modulus, ठीक है, चलो r क्या है यहाँ पर, r यहाँ पर, here is the r is coefficient of correlation, coefficient of correlation between x and y, and bxy, we know that what is bxy and byx. Now putting
द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या था, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पर देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट वेरिएबल एक्स एंड वाई आर दिस इज फाइंड द विनर टू रिग्रेशन, ठीक है। तो आर क्या है, वी एक्स ए का वैल्यू क्या है, हाफ है, और इसका वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन आर का जगह में रूट ओवर 0.5 लिखा, क्यों लिखा, कहाँ से लिखा, देखो यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट में कैलकुलेशन है, आर इक्वल टू रूट ओवर क्या है, बी एक्स वाई इंटू बी एक्स वाई, सॉरी बी एक्स वाई इंटू बी बी वाई एक्स, वाई एक्स होगा, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, बी एक्स का वैल्यू क्या था 1, बी एक्स का हाफ, बस पुट करो 0.5, दैट मीन्स 0.707 नियरर, क्लियर। ऐसे ही 0.5 का हम आर स्क्वायर लिख दिया, आर का वैल्यू बगल साइड में कैलकुलेट करके निकाला रूट ओवर 0.5, तो 1 माइनस 0.5 बाई 1.5, आंसर विल बी 1/3, दैट मीन्स 1/3। tan थीटा का वैल्यू क्या मिला 1/3, मॉडुलस मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर पॉजिटिव आंसर लेना है 1/3, एंड दैट्स व्हाई थीटा इक्वल टू क्या होगा ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्स रूल में tan इधर आएगा, tan इनवर्स 1/3, दिस इज द आंसर। तो देयरफॉर द एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन्स इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 1/3, यहाँ पर 1/3 मिला, tan इनवर्स 1/3, क्लियर। Now, question number 4. Find the regression coefficient of y on x. that means byx निकालना होगा for the following data, ठीक है, सिग्मा x, सिग्मा y, ये सब पैरामीटर्स है, सिग्मा एक्स स्क्वायर करने से जितना आएगा सिग्मा, सिग्मा मीन सम ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, सिग्मा मीन सम ऑफ ऑल एक्स, सिग्मा मीन सम ऑफ ऑल वाई, and sigma y square means sigma of sum of all y square, sigma xy means sigma of sum of all xy equal to this, and number of observations is कितना ना 10, number of observation is 10, clear। now find the regression of coefficient, that means y on x, that means byx equal to axioms निकालना होगा। तो we know that here is the formula, byx equal to n into sigma xy minus sigma x into sigma y by n into sigma x square minus sigma x whole square, bas this is the answer। and here is the another reference, because denominator numerator, if denominator numerator is divided by n, then this stage will be come up, ठीक है, इसको छोड़ो, इसका जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिखो n इंटू सिग्मा एक्स, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 10, सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू 1200, पुट करो, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स का वैल्यू 60 और सिग्मा वाई का 105, n इंटू 10 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर मीन्स 800 एंड सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल 600, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट this 1.295 आंसर, তাহলে byx इक्वल टू 1.295 आंसर, क्लियर। तो हमें मिल गया द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन्स इक्वल टू 1.295, दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बोलছে, व्हाट डज इट से, x एंड y आर कोरिलेटेड वेरिएबल्स, कोरिलेटेड वेरिएबल्स मीन्स एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट वैरी हो सकता है और इनडायरेक्ट वैरी भी हो सकता है, वो छोड़ो। 10 ऑब्जर्वेशंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स, ठीक है, सिग्मा एक्स इक्वल टू 55, सिग्मा वाई इक्वल टू 55, सिग्मा एक्स वाई दिस, sigma x square this, predict the value of y when the value of x is 6। तो तुमको निकालना है the value of y कितना होगा जब x 6 दिखाएगा, when x shows itself 6, then what will be the value of y, you have to find that। now
Here is that number of observation is 10. Number of observations equal to 10. Clear? Find the value of y when the value of x is 6 from the equation of the line of regression of x or y. यही हमको निकलना है. ठीक है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y when the value of x is 6. कहाँ से मिलेगा ना? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y. तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन तुमको निकालना है. क्यों ना? एक इक्वेशन नहीं मिलेगा तो x का वैल्यू y का वैल्यू कैसे मिलेगा? x का वैल्यू 6 पुट करना है उस इक्वेशन में, तब y का वैल्यू निकलेगा. तो वो लाइन क्या है ना? रिग्रेशन लाइन है. इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन कैसे निकलेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन देखो. द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x क्या है ना? यही फॉर्मूला है, हमको मालूम है. n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर. क्लियर? नाउ बी वाई एक्स क्या होगा? बी वाई एक्स क्या होगा ना? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इक्वल टू दिस फॉर्मूला लिखो. यहाँ पर वैल्यू पुट करो, जो वैल्यू हम लोग को बोला. देखो n का ऑब्जर्वेशन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 10 है. क्वेश्चन में बोल दिया. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, बोल दिया. वैल्यू जब है, देखिए यहाँ पर क्या बोला? 10 ऑब्जर्वेशंस. दैट मीन्स n इक्वल टू 10. सिग्मा एक्स वाई बोल दिया, सिग्मा वाई बोल दिया, सिग्मा एक्स बोल दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर बोल दिया. बस all things are given here, and after putting this value we get this 19/33 आंसर. चले BIX निकल गया. ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? आवर टारगेट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन. नाउ we know that the form of line of regression of y on x is that y minus y bar. ए y bar क्या है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन व मीन इक्वल टू बी वाई एक्स बाई एक्स माइनस एक्स बार. ठीक है, ठीक है. y बार का मीनिंग क्या होता है? y का मीन ही है. मीन मीन्स एवरेज. x बार मीन्स x का एवरेज. ठीक है, তাহলে y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स बार. তাহলে y का एवरेज कैसे मिलेगा ना? y ऑब्जर्वेशन सिग्मा y कितना है? 55 है. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 10 है. তাহলে 55 को 10 से डिवाइड करो, তাহলে एवरेज मिल गया y का. तो पूरा y कितना होता है? 55. बस, तो 55 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, 5.5 y का एवरेज मिल गया, मीन मिल गया. एक्स का मीन कैसे मिलेगा ना? एक्स का टोटल सम ऑफ एक्स बाय नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्वेशन 10, 5.5 मिल गया. बस पुट कर दो. और बी वाई एक्स तो पहले ही निकल गया, पुट करो. बी वाई एक्स क्या था? 19/33 पुट करो. उसके बाद इसको कैलकुलेशन करके देखो, ऐसे मल्टी करो. कैलकुलेशन करने के बाद देखो 19/x/33 रह गया, और यहाँ पर 19/6 रहा है. यहाँ पर माइनस 55/10 इधर चलाया 55 ठीक है 10 इधर आएगा तो क्या होगा? 11/2 ही आएगा ना. यहाँ पर देखो ना, सर इतने पर 10 था, 10 को 2 से मल्टी करने से, 5 से मल्टी करने डिवाइड करने से 2 होता है. 55 को 5 से करने 11 होता है, तो 11/2 होता है. अब इसको ऐड करो, 19x/33 को इस तरफ ले जाओ बाएं तरफ, तो यहाँ पर ऐड करने से क्या मिला? 6 LCM और ऊपर क्या है? 33. बस ऐसे करने से बाद मिलता है y इक्वल टू क्या है? 19x/33 प्लस 7/3. क्लियर? अब x का जगह में क्या निकलेगा है? when x इक्वल टू, गिवन दैट x इक्वल टू 6, सिंस गिवन x इक्वल टू 6, तो x যখন 6, देन व्हाट विल बी द 6 पुट करो, तो y का आंसर मिलेगा 191/33. दैट मीन्स 5.788. क्लियर? दे सो वेरी सिंपल सम्स. लाइन ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या आता है? y1x जब बोलेगा ना, तो तब y सब्जेक्ट होगा.
चलो y का साथ y मीन y माइनस होगा इक्वल टू बी वाई एक्स, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y वन एक्स इंटू एक्स का फिगर आएगा x माइनस एक्स बार, एक्स मीन तो यहाँ पर निकल गया, देखो बाएं तरफ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर क्या होना चाहिए अभी, क्वेश्चन नंबर 6, the following results were obtained. Following results were obtained. Following results are obtained with respect to two variables x and y, that is sigma x 30, sigma y 40, such, and number of observations is 6. Find the following. Number 1, the regression coefficients. Regression coefficients means byx, bxy, ठीक है। तो पहले वही निकालो, द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, दैट मीन्स बी वाई एक्स। बी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई नीचे जेटू बी वाई एक्स अपॉन एक्स मान ऑन एक्स, दैट्स वाई नीचे सब x आएगा, याद रखना n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बस आप वैल्यू पुट कर दो, छोटा छोटा वैल्यू पुट करने से देखो आंसर आ गया, ठीक है। जैसे है ऐसे वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया -0.323 आंसर। तो बी वाई एक्स मिल गया, पहले रिग्रेशन मिल गया क्या ना, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स निकल गया। नाउ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, दैट मीन्स बी एक्स वाई। आगे चलो, बी एक्स वाई एक्स पहले था previously byx, now we have to find out bxy. Bxy means same similar formula but upon y on y, and that's why नीचे y होगा, ऊपर जो सेम है वही रहेगा। तो सिग्मा n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। बस क्लियर। आप वैल्यू पुट करो, जो जो वैल्यू बोल दिया देखो क्वेश्चन में सब वैल्यू है। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर मिला क्या 0.458, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला माइनस, क्यों ना ये सब्ट्रैक्ट करने से माइनस आ रहा है, क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 বলছে, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा बोलो। देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई का मीनिंग क्या होता है ना, आर पहले लिख दिया, और नहीं तो क्या लिखना है, पहले जो किया हम लोग कहाँ किया था, एक्स्ट्रा सम्स में याद है आर बोला, तो आर कैसे होगा, और नहीं तो सी ओ भी, ठीक है, सी ओ भी एक्स वाई। पहले आर कैसे निकलेगा ना, रूट ओवर, ये हमारा फॉर्मूला है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो बी एक्स वाई का वैल्यू तो पहले निकल गया ना, बी एक्स वाई का वैल्यू कहाँ है, ये बी एक्स वाई -0.458 लिख दिया। बी एक्स का वैल्यू क्या मिला था -0.323 लिख दिया, दोनों माइनस माइनस से प्लस होगा, आंसर होगा 0.385। तभी माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ना हम लोग को तो मालूम है बी वाई एक्स एंड आर का हैव सेम साइन, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो बी वाई एक्स का साइन क्या है, देखो बी वाई एक्स का कहाँ साइन है माइनस, बी एक्स का साइन माइनस था, इसलिए आंसर का साइन माइनस होगा। क्लियर है, तो 2 नंबर का आंसर हो गया। नंबर 3 बोल रहा है क्या, 3 बोल रहा है द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y एंड x, ठीक है, एंड ऑन होगा ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन ऑन x, ठीक है, छोड़ो
बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे होगा बोलो, इक्वेशन तो निकालने के क्या लिया, क्योंकि यहाँ पर बोला रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई बोला, वाई मीन्स तो बायां तरफ से वाई रहेगा, दायां तरफ बाकी चीज़ रहेगा, ठीक है। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई मीन्स ऑन क्या है, एक्स, क्या होगा वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यही तो फॉर्मूला है। जब वाई वन एक्स बोलेगा तो वाई बाएं तरफ होगा, एक्स दाएं तरफ होगा, और देखो ये बी वाई जो कोफिशिएंट है वो भी बी वाई एक्स ही होगा। बस ऐसे लिखो और वैल्यू पुट करो, बस हो गया, तो इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कलेक्शन करने दीजिए, यहाँ पर एंड नहीं, ऑन एक्स, ठीक है, ऑन एक्स। चलिए हम लोग को क्या क्या वैल्यू मालूम है, वाई मीन मालूम है, और मीन मालूम नहीं है कि मीन मालूम है नहीं, वाई मीन तो नहीं है, तो वाई मीन कैसे निकलेगा ना, सम ऑफ ऑल वाई बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 6, तो हमने 42/6, देखो बाया तरफ हम करके रखा, देयर पर साइन देंगे, y bar equal to sigma y/6, that means 7, and x mean equal to sigma or sum of all x divided by n, number of observation 5, बस वही पुट कर दो आफ्टर कैलकुलेशन, एंड बी एक्स का वैल्यू क्या मिला था, बी वाई एक्स, दिस यहाँ पर पुट करो, कैलकुलेशन करने के बाद देखो ए फिगर आएगा, तुम इसको ही आंसर लिखेगा, तुम्हारा किताब का आंसर थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पर 29 से डिवाइड करने से 29 30 से डिवाइड करने से फिगर कभी आ रहा है, तो इसको ही आंसर लगेगा, ठीक है। इसको छोटा करने के लिए थोड़ा एक एचसीएफ निकलने के बाद उसका नियरर एचसीएफ देके डिवाइड करने के बाद एक छोटे इक्वेशन आ रहा है, लेकिन वो छोटे इक्वेशन मत आंसर लिखो, जैसे आएगा वैसे ही तुम 7 का 1, आउट ऑफ द टू रिग्रेशन लाइन्स फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, that means 3x plus 12y equal to 8 and 3x plus 9x plus 3y equal to 46. Okay. Now there is the first question, first equation, 3x plus 12y equal to 8 and 9x plus 3y equal to 46. Here is the extra effort, extra knowledge, extra, if find the common point of two regression lines. Find the common point two regression lines equal to what? That means that is x bar y bar, इतना ही हमको निकालना होगा, इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा नॉलेज किया, देखो कैसे है, ये 9 10 का जैसे सॉल्व कर रहा है हम लोग, ऐसे सॉल्व करना है, पहले कम करना है, प्रीवियसली 1 विल बी डन, दैट इज 9, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 9x, तो 3 कॉमन ले लो, तो ये भी 3x आ गया, 3x plus y equal 46/3, and after that you have to follow the rule of class 9 or 10, that's a solving rule. Now solving that, x equal to 16/3, and that means x bar equal to 16/3, and y equal to 2/3 minus 2/3, that means y bar equal to minus 2/3, and that is the, therefore the common point equal to কি হবে না x bar y bar, that means x bar कितना मिला ना 16/3 और y bar मिला minus 2/3, that is the answer. This is the extra knowledge.
if you asked the common point of two regression lines. Okay. Now here is another question that you have to find out the two regression lines. Find the line of regression y1x. दोनों ही regression line दे दिया यहाँ पर. Here is also given that two equation of lines, and from these two equation of lines you have to choose which will be the regression of line of regression of y1x. This will be y1x, either this will be y1x. कौन regression line होगा y1x होगा, ये होगा ना ये होगा, वही देखना है. तो कैसे देखेगा? पहले देखो, let 3x plus 12y equal to 8. इसको पकड़ लिया to be regression line of y1x. Suppose assume that this line is regression line of y1x. Now we have to arrange this equation as a subject of y. We get this y equal to minus 1 by 4x plus 2 by 3. Clear? By solving rule. And here is the coefficient of x, and this is the क्या? Now y1x. Now byx equal to minus 1 by 4. Clear? Equal to minus 1 by 4. देखो अरेंज करने के बाद y equal to minus 3x by 8. This by solving rule y, and here is the coefficient of x. तब ना y1x means the coefficient of y1x means minus 1 by 4. तब byx equal to minus 1 by 4. And after that, secondly, the second equation must be the regression of x on y. First will be y1x, पकड़ लिया, assume किया. तो second क्या होगा? Second equation will be x on y. And after that, you have to create x as a subject. And after that, x equal to minus 1 by 3y. That means the coefficient of y. That means the regression coefficient of x on y equal to minus 1 by 3. Clear? Now we have to judge it that byx into bxy. What will be the answer? 1 by 12. 1 by 12 means this is a decimal number which is less than 1. And we know that always the product of byx into bxy, दो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 0 का इक्वल अथवा 0 का बड़ा होगा. The multiplication will be greater than 0 or equal to 0, and also less than 1 and equal to 1. तो देखो यहाँ पर less than 1 मिला, and that's why it is true that byx and bxy, byx equal to minus 1 by 4 and bxy equal to minus 1 by 3, and this both figure is true for byx and bxy, and that's why all above assumptions are true. हम लोग जो पकड़ लिया था, पहले पकड़ लिया ये क्या है? This is the to be the regression line of y on x, and here also assume that this is the regression of line of x and y. Both are same because these are proved, and that's why the line of regression of y on x कौन होगा? y on x किसको पकड़ लिया था? y on x इसको पकड़ लिया था. Then this is the regression of line of y on x. 3x minus 12y equal to 8. This will be the answer. Right equation. This will be the answer. The line of regression of y on x is 3x plus 12y equal to 8. Clear? Thank you. Now, question number 7.2. Two regression lines are represented by this equal to 0 and this. Find the line of regression of y on x. These are similar sums to question number 7.1, and that's why it will be taken by you as a homework. And next 7.3 सब ISC 2011, 2013, 2005, 2005 विभिन्न ईयर का सम्स आया है. देखो यहाँ पे सेम सम देखो. टू रिग्रेशन लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस. फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x. बस सेम similar sums because same as question number 7.1 which is
गिवन अबव क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिया, उसका रेफरेंस से ये सॉल्व कर लो, ये भी होमवर्क है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो find the coefficient of correlation from the following regression lines। दोनों रिग्रेशन लाइन दे दिया, ISC 2018 एंड 03 में आया था, 2003 में। x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको क्या बोला ना, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिग्रेशन लाइन्स। ठीक है, the coefficient of correlation means b। एक्स वाई निकालना होगा, बी वाई एक्स निकालना होगा, आफ्टर दैट आर निकालना होगा, कारण कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन्स आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन्स आर, आर निकालना होगा। आर का तो फॉर्मूला मालूम ही है। आर का फॉर्मूला क्या है, देखो आर का फॉर्मूला क्या है, root over byx into bxy, and that's why we have to find byx and bxy। Now assume that x minus 2y plus 3 equal to 0 is the regression of the line y1x। इसको y1x पकड़ लो, क्यों नहीं, यहाँ पर तो बोल दिया नहीं, it is not given that which are y1x and which is x on y, and after that we have to assume that means you have to create as a subject y, that means this তাহলে y equal to half x, that means coefficient of x equal to coefficient of y on x equal to half, that means byx equal to half मिल गया। now next assume 4x minus 5y plus 1 equal to 0, the regression line will be x on y, and after calculation that x equal to 5 by 4y minus 1 by 4, that means bxy equal to 5 by 4। clear हो गया। now byx into bxy equal half into 5 by 4, that means क्या 5 by 8, 5 by 8 दोनों मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये क्या है, ये लेस देन 1 है, तो हमारा क्या रिलेशन होना चाहिए, दोनों कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 1 का नीचे होना चाहिए, 0 का बड़ा होना चाहिए, 0 से इक्वल होना चाहिए, 1 का इक्वल होना चाहिए, लेकिन 1 का तो कम होना चाहिए ना, तो कम तो हुआ, 5 by 8 मीन्स डेसिमल नंबर, दैट्स वाई आवर एजम्पशन इज राइट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन वाज, हमारा एजम्पशन वाज क्या था, x minus 2y plus 3 0 is the regression line of y1x। this is true because we get this less than 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। The above assumptions of equations are true and therefore दो equations हम लोग जो पकड़ लिया था वो सही है। पहले वाला इक्वेशन पकड़ लिया था y1x, दूसरा वाला इक्वेशन में पकड़ लिया था x on y, and this is the true, and that means कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x and y आर इक्वल टू दिस जो फॉर्मूला है लिखो, तो आर इक्वल टू हाफ हाफ पुट करो, कारण दोनों सही है, पुट करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वही आंसर होगा, आर इक्वल टू दिस। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y माइनस 5, एक एक करके पकड़ लो, ये y1x और ये क्या है कोफिशिएंट x ऑन y करके देखो निकालो, byx एंड bxy निकालने के बाद दोनों के इनटू करके देखो क्या आ रहा है, 1 का कम आएगा तो सही है, और कौन का ज़्यादा होगा तो गलत है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, तो रिवर्स करना होगा। ठीक है, रिवर्स करना होगा, जो सेकंड इक्वेशन को उल्टा पकड़ना है, उल्टा पकड़ के देखेगा और सम से हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर दिस विल बी द होमवर्क, आप लोग ट्राई करो। क्या, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 8 का 1। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो x बार y बार मीन बोल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन x बोल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन y दे दिया, एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू क्या है 0.8। कोरिलेशन कोफिशिएंट मीन्स कौन है,
कोरिलेशन कोफिशिएंट माने क्या है ना, आर का वैल्यू बोल दिया 0.8। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y1x, तुमको इक्वेशन निकालना है। चलिए कैसे निकलेगा देखो, द रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ y1x इक्वल टू हम लोग का मालूम क्या है, y माइनस रिग्रेशन ऑफ y equations of y, that's why you have to subject, you have to create subject using y, y subject बाकी predicate, y is equal to वर्ब है क्या है ना बी वाई एक्स, ये तो y है, वाई एक्स लेना है इंटू एक्स माइनस एक्स बार। क्लियर, नाउ हियर इज गिवन y बार एक्स बार। क्लियर, तो बी एक्स तो मालूम नहीं है, चलिए बी एक्स निकालना होगा। बी एक्स कैसे निकलेगा ना, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y1x कैसे ना, इसका फॉर्मूला क्या है, आगे पहले क्या लिया n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। क्या है y1x जो 1x होगा अपॉन x मीन्स नीचे x होगा, याद रखना, पहले सम्स में करके ले आया, ठीक है, प्रीवियस सम्स में हम लोग किया, ठीक है। चलो क्या हुआ डेल्टा वाई, चलो बी वाई एक्स, ए भी देखो बी वाई इसका आउट एक इक्वेशन है आर इंटू डेल्टा वाई बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन हमारा देखो यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई मालूम नहीं है, सिग्मा एक्स मालूम नहीं, वाई मालूम नहीं, इसलिए इस फॉर्मूला नहीं चलेगा। इसका रेफरेंस और एक फॉर्मूला है बी वाई एक्स का, क्या है आर इंटू क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन एक्स, दोनों मालूम है। तो इसका वैल्यू पुट करो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई मीन्स 20 मीन्स पुट करो बस, और 8 तो मालूम है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0.8, तो देयरफॉर बी वाई एक्स इक्वल टू 8/7, ठीक है। बी वाई एक्स मिल गया, अब बी वाई एक्स का जगह में 8/7 पुट करो, पुट करने के बाद आंसर आ गया, देखो क्लियर कट आंसर आ रहा है। सो बाई सॉल्विंग रूल we get 8x minus 7y equal to 5/6 equal to 0. That will be the answer. Clear? ताले this is the क्या है the regression equation of y1x, ठीक है। therefore क्या ना the regression equations of y on x is क्या like this 8x minus 7y plus 5/6 equal to 0. This is the answer. समझे ना। Now there is another part, also estimate the value of y when x equal to 70. So after finding the regression equation, we have to use this equation, and into this equation we have to put x equal to 70, x equal to 70 put करो, तो 8 into 70 minus 7y 5/6, after solving that y equal to 159/3/7 आंसर, ठीक है। तो वाई का आंसर मिल गया, तो वाई का आंसर मांगा, वैल्यू ऑफ वाई मांगा, वैल्यू ऑफ वाई आंसर निकालना होगा, तो वैल्यू ऑफ वाई निकल गया जब व्हेन x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 70। क्लियर, थैंक यू। এই ধরনটা রাখতে হবে, আর যাতে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, কারণ আমি সব সময় কিছু না কিছু কোনো ক্লাসে দিই, হয়তো তোমার ক্লাসের কাজেই লাগবে, মনে করে সাবস্ক্রাইবটা করে রাখবে। সব রকম লোকের জন্য, যারা চাকরি পরীক্ষা দিচ্ছে, যারা কলেজে পড়ছে, যারা স্কুলে পড়ছে, অল বোর্ডস, অল টাইপ অফ স্টুডেন্টসের জন্য আমি কিছু না কিছু সবসময় দিয়ে থাকি। সেই জন্য সবাইকে বলো নিজেরাও সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং সবাইকে বলো সাবস্ক্রাইব করে রাখো। থ্যাংক ইউ।